Good morning, students. How are you? Today, day is Tuesday, 19 January 2021. So, take your computer book. Let's start chapter 3rd. Go on page number 25. Working with file and folder. A file is an item that contain information, for example, text or images or music. When open, a file can look very much like a text document or a picture that you might find on someone's desk or in a filing cabinet. On your computer, files are represented with icon. This makes it easy to recognize a type of the file by looking at this icon. Here are some common file icons. फाइल एक ऐसा आइटम है जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन सेव कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल टेक्स्ट, इमेजेस या म्यूज़िक। जब भी हम किसी फ़ाइल को ओपन करते हैं तो उसमें हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स या पिक्चर्स या कोई फाइल्स वगैरह वो सब डेस्क पे होते हैं एक कैबिनेट में। उसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर में भी एक ऐसा फोल्डर बना के या फाइल बना के अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सेव कर सकते हैं, लाइक दिस कॉन्टैक्ट, पिक्चर या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है फोल्डर। ए फोल्डर इज़ अ कंटेनर यू कैन यूज़ द स्टोर फाइल इन इट इफ़ यू हैड थाउजेंड ऑफ पेपर फाइल्स ऑन योर डेस्क। It would be nearly impossible to find any particular file when you needed it. That's why people often store paper file in folder inside a filing cabinet on your computer. Folders work the same way. Here are some typical folders icon. फोल्डर एक कंटेनर है जिसमें हम हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं उन्हें सेव कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे किसी भी डेस्क पे बहुत सारे पेपर्स होते हैं और उन्हें हम अगर किसी एक पेपर की ज़रूरत है तो हम उसे ढूंढ नहीं पाते, उसी तरीके से हम उन्हें सेव करने के लिए एक कैबिनेट में फ़ाइल बना के उन फोल्डर को हम सेव करते हैं। उसी तरीके से ऑन योर कंप्यूटर आप अपने कंप्यूटर में भी एक फ़ोल्डर बना के जितने भी फाइल्स या जितने पेपर्स हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं। हियर आर सम टिपिकल फोल्डर्स आइकन। यहाँ पे कुछ फोल्डर्स दिए हुए हैं जैसे न्यू फोल्डर या लेटर्स, ये फोल्डर है। पेज टर्न। Folder can also store other folder. A folder within a folder is usually called a subfolder. You can create any number of subfolder and each can hold any number of file and additional subfolder. Folders can also store other folder. एक folder में बहुत सारे folders को भी हम सेव कर सकते हैं। उन्हें एक folder में बहुत सारे folders को सेव करना सब folder कहलाता है। You can create any number of subfolders. और आप उन सभी folders को एक नाम दे सकते हैं जो उस सब folder में ऐड किया गया है। नेक्स्ट है computer window. You can open the computer window by selecting computer from the right side of the window start menu. The computer window can also be displayed by clicking the computer option in the left sidebar of any open window on the desktop. You can open the system control panel by first selecting control panel from the right side or the window start menu, then double clicking the system option. The computer window primarily display hard disk information. It listed all local disk, external hard drive and network drive that are connected to the computer. Windows 7 display the storage capacity of each disk and how much disk space is available. This information is helpful if you are concerned that you are running out of space for storing file on your computer. The system control panel allow you to view more detailed system information but does not include information about connected hard disk. This information include the CPU, model and speed, the amount of RAM installed, the current operating system and other information. The system control panel is useful for checking if your computer meet the system requirement of a specific application. जब भी हमें कंप्यूटर विंडो को ओपन करना होता है तो हमारे राइट साइड में एक कंप्यूटर का एक ऑप्शन होता है कंप्यूटर में। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी कंप्यूटर विंडो ओपन होगी, लाइक दिस।
ये हमारी कंप्यूटर की एक विंडो है। इसमें ये है हमारी जितनी भी डिस्क हैं, चाहे वो नेटवर्क से जुड़ी हुई है, ये हमारे जो करंट लोकेशन में हमारी स्टार्ट की हुई है, ये हमारी जितनी भी ड्राइव्स हैं। इन ड्राइव में कंप्यूटर विंडो में हमें ये दिखाया जाता है कि कौन कौन सी ड्राइव एट प्रेजेंट हमारे कंप्यूटर में है, उनमें कितना स्पेस है, उसमें कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, ये सब हमें कंप्यूटर विंडो में दिखाई देती है। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग फाइल एंड फोल्डर। किसी भी फाइल एंड फोल्डर को सेलेक्ट करने की स्टेप्स कौन कौन सी है। फॉर सेलेक्टिंग फाइल एंड फोल्डर वी शुड फॉलो दीज स्टेप। टू सेलेक्ट फाइल एंड फोल्डर, क्लिक ऑन इट। टू सेलेक्ट ए consecutive group or file and folder, click the first item, press and hold down the shift key and then click the last item. To select multiple file or folders that are near each other, drag the mouse pointer to create a selection around the outside of all the item that you want to include. सबसे पहले जब भी हमें किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें उस फाइल और फोल्डर को क्लिक करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे एंड देन जो भी हमें फाइल एंड फोल्डर को क्लिक करना है सबसे पहले उससे फर्स्ट आइटम पे क्लिक करेंगे, उसे प्रेस करेंगे एंड होल्ड डाउन करते हुए शिफ्ट की को दबाएंगे और पूरे लास्ट आइटम तक हमें क्लिक करना होगा। उसके बाद उसके आसपास में जितनी भी फाइल एंड फोल्डर है उसे हम क्लिक करते हुए ड्रैग करते हुए माउस के पॉइंटर को पूरा हमारा जितना भी फाइल एंड फोल्डर का सिलेक्शन है उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, क्रिएट ए न्यू फोल्डर। कंप्यूटर में कोई भी नया फोल्डर कैसे बनाया जाता है। फॉर क्रिएटिंग ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप वी शुड फॉलो दीज स्टेप। राइट क्लिक द माउस ऑन द ब्लैंक एरिया of the desktop, select new from the shortcut menu, then click on folder, type in the folder name, press enter or click away from the surrounding rectangle. A new folder is created. For creating a folder in computer window we should follow these steps. Locate on the computer window where you want to create a new folder. Click on the new folder button on toolbar, type in the folder name, press enter और click away from the surrounding rectangle. सबसे पहले हमें फोल्डर बनाना है तो हम सबसे पहले कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे हमारे पास में इस तरह का एक कॉलम आएगा। दैन सबसे नीचे न्यू लिखा हुआ है, इस पर दैन आफ्टर न्यू क्लिक। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये आएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर फोल्डर नेम है। जैसे ही हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक लिस्ट आएगी लाइक दिस। इसमें हमारे फोल्डर का हमें नाम लिखना है, कौन सा हमारा नेम है फोल्डर का। और जैसे ही हम इस फोल्डर पे नेम लिखेंगे और आफ्टर प्रेस एंटर की तो हमारा फोल्डर हमारी कंप्यूटर की विंडो में सेव हो चुका है। फॉर ए क्रिएटिंग फोल्डर एंड इन कंप्यूटर विंडो दीज स्टेप। इस तरह से हमें कंप्यूटर में फ़ोल्डर बनाया जाता है। नेक्स्ट है रीनेमिंग फाइल और फोल्डर। फॉर रीनेमिंग ए फाइल और फोल्डर वी शुड फॉलो दीज स्टेप। सेलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर you wish to rename. Click on the Organize menu and select Rename. Type in the new name. To finalize the renaming operation, press Enter or click away from the rectangle that surrounded the file or folder name. जब भी हमें किसी फाइल एंड फोल्डर का दोबारा से नेम चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे, लाइक दिस। जैसे ही हम उस फाइल और फोल्डर पे क्लिक करना होगा जिस पे हमें सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम करेंगे तो हमारे सामने ये लिस्ट आएगी। सबसे नीचे से सेकंड नंबर रीनेम ऑप्शन है। इस रीनेम पे जैसे ही हमें क्लिक करेंगे फोल्डर को एक हाईलाइट होगा वो फोल्डर जिसमें हमें टाइप करना है हमारा न्यू नेम एंड आफ्टर क्लिक एंटर बटन। नेक्स्ट है डिलीटिंग ए फाइल एंड फोल्डर। सबसे पहले जब भी हमें कोई फोल्डर को डिलीट करना है तो वो कैसे करना है। टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर, राइट क्लिक द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू डिलीट एंड देन क्लिक डिलीट ऑप्शन। सबसे पहले हमें जिस फोल्डर को डिलीट करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक डिलीट ऑप्शन और उस फोल्डर को डिलीट कर देंगे और हमारा फोल्डर डिलीट हो जाएगा। You can also delete a file or folder by dragging it to the recycle bin or selecting the file and folder and then pressing delete key. नेक्स्ट है मूविंग ए फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर में से फोल्डर को मूव कैसे करवाते हैं। मूव मीन्स कट एंड पेस्ट। कटिंग एंड पेस्टिंग आर टिपिकल विंडो फंक्शन। कटिंग मीन्स मूविंग
something. This can be a file or folder is working in Windows Explorer or text, graphic, object if you actually working inside an application. Pasting is the action of bringing back the cut item in its new location. There are two different methods of cutting and pasting inside Windows Explorer, and these are well worth learning as they are basically the same in every window प्रोग्राम यू वर्क इन. कटिंग एंड पेस्टिंग का मीन है मूव करवाना. एक फाइल फोल्डर को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करवाना मूविंग कहलाता है. उसका मेथड है टू कट ए फाइल or folder. First select the file or folder and then choose one of the following. Click on the organize menu, select the cut function, keyboard shortcut Ctrl+X. Click on the select item with the right mouse button and select cut from the shortcut menu. फर्स्ट है, सबसे पहले हमें जो भी फाइल या फोल्डर को लिट करना है या कट पेस्ट करवाना है वो सबसे पहले उसे ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाके सेलेक्ट करना है और कट फंक्शन पे क्लिक करना है या फिर Ctrl+X करना है और जैसे ही आप उस पर करेंगे तो वो वहाँ से कट हो जाएगा. टू ब्रिंग बैक द फाइल or folder in the new location, navigate to the new location then paste using one of the following. अब यहाँ से तो कट हो गया है बट उसे पेस्ट कैसे करवाना है. क्लिक ऑन द ऑर्गेनाइज मेन्यू, सेलेक्ट द पेस्ट फंक्शन. अब हमें कहाँ उसे पेस्ट करवाना है, सबसे पहले हम उस मेन्यू को क्लिक करेंगे एंड कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+V. in the position where you want to item to be pasted, click with the right mouse button and select paste from the shortcut menu. अब हमें उस लोकेशन पे जाना है जहाँ हमें उस फाइल और फोल्डर को पेस्ट करवाना है एंड देन आफ्टर पेस्ट बटन या Ctrl+V और हमारा फाइल एंड फोल्डर जो है वो कट एंड पेस्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है मूविंग ए फाइल एंड फोल्डर. कॉपिंग ए फाइल एंड फोल्डर लाइक कटिंग. Copying is also a typical window function. Copying does not damage or remove the selecting being copy. To place the copy in a new location is known as the pasting and is done the same way as the previously described. There are three different methods of copying. कॉपिंग के 3 मेथड है. इसमें किसी भी फाइल और फोल्डर का डैमेज नहीं होता, उसे सिर्फ उसके 2 कॉपीज़ हो जाती है एक दो अलग अलग ड्राइव्स में. सो मेथड है to copy file or folder. First select the file or folder then choose one of the following. Click on the organize menu, select the copy function, keyboard shortcut Ctrl+C. Click on the selected item with the right mouse button and selected copy from the shortcut menu. सबसे पहले हमें जिस फाइल और फोल्डर को कॉपी करवाना है उसे क्लिक करेंगे एंड देन आफ्टर कॉपी बटन सेलेक्ट करेंगे. टू प्लेस ए कॉपी of the file or folder in the new location, navigate to the new location then paste using one of the following. and then after जिस लोकेशन पे हमें उसे कॉपी करवाना है उस लोकेशन पे जाएंगे and then after paste button. Click on the organize menu, select the paste function, keyboard shortcut Ctrl+V. in the position where you want to item to be pasted, click with the right mouse button and select paste from the shortcut menu. and then after जिस लोकेशन पे हमें पेस्ट करवाना है उस लोकेशन पे जाके हमें पेस्ट ऑप्शन को प्रेस करना है और इस तरह से हमारा जो फाइल एंड फोल्डर है वो कॉपी हो जाएगा. क्रिएटिंग शॉर्टकट और फाइल एंड फोल्डर. किसी भी फाइल और फोल्डर का शॉर्टकट बनाना डेस्कटॉप पे. टू सेव सम टाइम यू कैन क्रिएट शॉर्टकट टू द आइटम यू यूज़ frequently. A shortcut is a link that you can place in many locations to gain instant access to the particular file, folder or program on your hard disk or on a network just by double clicking. किसी भी फाइल और फोल्डर का हम शॉर्टकट बना के हमें टाइम को बचा सकते हैं. Open the drive and folder containing the file and folder if in which you want to create a shortcut. First, click to view large image. Right click the file or folder and then click create shortcut. To change the shortcut name, right click the shortcut, click rename from the shortcut menu, type a new name and then press enter. Drag the shortcut to the desired location. उसके लिए हमें सबसे पहले उस इमेज को या उस फोल्डर को क्लिक करना है
और उसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है, देन क्रिएट शॉर्टकट, और हमें सबसे पहले क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक करना है। जैसे ही उस फोल्डर पे एक शॉर्टकट क्रिएट होगा वो अपना नेम मांगेगा या रीनेम मांगेगा कि हमें शॉर्टकट किस नेम से बनाना है। जैसे ही आप शॉर्टकट कुछ नेम से मांगेंगे, जैसे लाइक दिस, यहाँ डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, जैसे ही क्लिक करेंगे वो नेम मांगेगा, आपको नेम प्रेस करना है एंड देन प्रेस एंटर। जैसे ही आप प्रेस एंटर करेंगे वो आपका जो शॉर्टकट है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। दैट्स इट, कंप्लीट चैप्टर 3rd। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।